Morning, students. Today we will start with the second sum on investment accounting. ये sum भी last sum जैसे ही है. Bonus of shares इसमें सीखेंगे. Issue of rights issue और third है dividend. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. On 1st April 2015, 5,000 equity shares of rupees 10 each. अभी जब देखो जब भी नॉमिनल वैल्यू निकालना है तो 5,000 into 10 करना. Each of Apollo Limited were held as investment by Mrs. Meera at a cost of rupees 48,000. On 30th April 2015, she purchased 1,000 of such equity shares at rupees 12 per share. यहाँ पे purchase किया. Third, on 2nd June 2015, the company declared bonus in the ratio of 1 share for every 2 shares held. अभी bonus कैसा रहेगा declare हुआ है? 1 share for every 2 shares held. On 30th June 2015, the company made rights issue in the ratio of 1 share for every 2 shares held on payment of rupees 13 per share. यहाँ पे rights issue हुआ, but उसमें से Mrs. Meera subscribed only 40% of the shares and sold the balance of rights at the rupees 2 per share. उसने क्या किया? 40% खरीदा और 2% 2 rupees at the rate 2 rupees पे बेच दिया. एक नया एंट्री है इसमें. On 20th September 2015, dividend was received at rupees 2 per share for the year ended 31st March. अब यहाँ पे देखना है 31st March में कितना शेयर था, उस पे ही खाली उसको डिविडेंड मिलेगा. On 1st December 2015, 1,000 of such shares were sold by Mrs. Meera at rupees 20 per share. Equity shares in Apollo Limited. Prepare equity shares in Apollo Limited account in the books of Mrs. Meera for the year ended 31st March 2016. Round of figures to the nearest rupee. इसका मतलब क्या, अगर 0.65 या 0.70 आता है तो उसको हमें राउंड अप करना है नियरेस्ट रुपी को. अभी सबसे पहले फर्स्ट एंट्री. On 1st April 2015, 5,000 equity shares of rupees 10 each of Apollo Limited were held as investment by Mrs. Meera at a cost of rupees 48,000. पहला एंट्री 1st April 2015. It is her balance. To balance with 5,000 into 10, that is 50,000. Nominal value कितना हो गया? 50,000. और कॉस्ट कितना दिया उन्होंने? डायरेक्ट अमाउंट दिया 48,000. आई थिंक फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर हुआ है. अभी लास्ट टाइम एक दो जने बोला बहुत फास्ट किया था, तो तुम लोग देखो. On 1st April 2015, 5,000 equity shares of rupees 10 each of Apollo Limited were held as investment by Mrs. Meera at a cost of rupees 48,000. So first entry 1/4/2015 to balance 50,000. 50,000 कैसे आया? 5,000 into 10 और कॉस्ट कितना है? 48,000. अभी सेकेंड एंट्री. अभी सेकेंड एंट्री देखो. सेकेंड एंट्री क्या है? On 1st April 2000, on 30th April 2015, she purchased 1,000 of such equity shares at rupees 12 per share. अभी नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 और परचेज कितने में किया? 12 रुपीज में. तो नेक्स्ट एंट्री आएगा 30th April 2015 टू बैंक अकाउंट. कितना आएगा टू बैंक अकाउंट? 1,000 into 10, that is 10,000 नॉमिनल वैल्यू और 12,000 is your capital value. 10,000 कैसे है? 1,000 into 10 और 12,000 कैसे है? 12 into 1,000, that is 12,000. अभी नेक्स्ट on 2nd June, on 2nd June 2015, company declared bonus in the ratio of 1 share for every 2 shares held. अभी बोनस कितना डिक्लेयर किया है?
एक शेयर हर 2 शेयर्स पे। तो हम लोग पहले यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे, जो मैंने तुम लोगों को बताया था। वर्किंग नोट अगर बनाते हो तो तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में सब इजी होगा, ध्यान रखो। So we are preparing a working note. वर्किंग नोट में सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू। सॉरी, अभी हम लोगों ने परचेज, बैलेंस और परचेज इसमें एंट्री करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस लेंगे, फिर परचेज। 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस कितना शेयर्स था 5000, उसका वैल्यूएशन 3000 और 48,000। Then the shares were purchased भी परचेज कब किया उसने 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2015 टू बैंक 1000, उसका वैल्यू हो गया 10,000 और यहाँ पे उसका वैल्यू हो गया 12,000। 2 जून को बोनस शेयर्स, अभी बोनस शेयर्स कितना होगा इशू, अभी उसके पास कितने शेयर्स है वो देखो 6,000 है, तो 1:2 बोला है, 6,000 का हाफ, अगर 2 रहेगा तो 1, तो बोनस शेयर्स कितने इशू होंगे 3,000। उसका नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा 30,000 और कॉस्ट वैल्यू आएगा 0। मैंने बताया था तुम लोगों को कि बोनस शेयर्स क्या रहता है, दे आर ऑलवेज गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी इसका एंट्री यहाँ पे आ जाएगा, टू बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स 30,000 0। Okay, now next entry, that is of 30th June. 30th June, the company made right issue in the ratio of 1 share for every 2 shares held. अभी उसके पास कितने शेयर्स हो गए टोटल 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000, 9,000 held. पेमेंट ऑफ ₹13 पर शेयर। अभी यहाँ पे वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, राइट्स इशू का, वो देखो राइट्स इशू, टोटल शेयर्स कितने उसके पास 5,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000, दैट इज 9,000। अभी राइट्स इशू कितना होगा 4,000, इसका हाफ 1/2 इंटू
9,000. It is equal to 4,500. 4,500. But out of 4,500, मीरा का सब्सक्रिप्शन कितना है? Subscription is subscription is 40% of 4,500. That is equal to 1,800 shares. और उसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा? इंटू 13 per share, which is equal to 23,400. तो ये हो गया उसका सब्सक्रिप्शन. अभी उसने बेचा वो अलग है, उसका एंट्री हम लोग इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वो राइट्स इशू का शेयर्स है, वो उसने बेचा है, तो वो हम लोगों को अभी यहाँ पे देखना नहीं है. तो ये आएगा एंट्री उसका June 2015 टू राइट्स इशू का बैंक रहता है, सॉरी, तो बैंक अकाउंट कितना खरीदा उसने? 1800. तो 18,000 and the valuation was 23,400. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आई थिंक सो. राइट्स इशू का इतना ही होगा. उसने बेचा वो सेल ऑफ राइट्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा. ये याद रखो. अभी नेक्स्ट एंट्री. अभी ऑन 30th जून हो गया, ये एंट्री हो गया. On 20th September 2015, dividend was received at the rate of ₹2 per share for the year ended 31st March 2015. अब यहाँ पे आ रहा है 31st March 2015 का एंट्री. तो उस पे कितना शेयर्स था? अभी हमारे पास 5,000 शेयर्स था. करेक्ट? हमारे पास कितने शेयर्स थे? 5,000. तो डेट आएगा 20th September. Particulars by bank account. अब ये डिविडेंड है, तो कितना मिलेगा? 5,000 इंटू ₹2, दैट इज 10,000. कितना मिलेगा? 10,000. बट यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शेयर्स 30th अप्रैल को भी खरीदे थे. वो कितने खरीदे थे? 1,000. उसका भी उसको एंटाइटलमेंट हो जाएगा क्योंकि वो बैलेंस पहले का है और अभी का, तो ये हो जाएगा 2,000 उसको प्रॉफिट. अभी बचा लास्ट एंट्री. ऑन December 1st he sold shares. अब यहाँ पे देखो एंट्रीज ये रह गया अपना वर्किंग नोट में, थोड़ा वो एंट्री कर देते हैं. टू राइट्स इशू कितना था? डेट उसका 30th जून. कितने शेयर्स? 1,800. that is 18,000. cost is 23,400. correct?
अभी हम लोगों को इसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर में से ये जो डिविडेंड हमको मिला है 2000 का जो हमारा लॉस हुआ है वो हमें यहाँ पे लेस करना है, ये याद रखो। जो कॉस्ट है 2000, ये 2000 हमको लेस करना है परचेज, because shares acquainted on 30th April is 1000. Dividend on these shares at rupees 2 is will be pre-acquisition dividend. वो क्या रहेगा? pre-acquisition dividend. तो उसके ऊपर से हम लोग वो 2000 हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि हमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। 2015 तो आएगा डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, नॉमिनल वैल्यू नहीं, सिर्फ यहाँ पे इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि वो पहले से प्रॉफिट है अपने को, ये याद रखो। अभी हम लोगों को पास कितना शेयर्स है वो टोटल देखना है हमें, क्योंकि हमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना सेल प्रोसीड्स हुआ, कितना हमको मिला। तो टोटल ईयर 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10,800। यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा? टोटल हो जाएगा 50 60 70 80 90 1,08,000। और यहाँ पे टोटल आएगा 48 + 12 50 60 60,000 83,400 माइनस 2,000 81,400। यहाँ तक सबको समझ में आया? देख लो मैंने क्या किया था, यहाँ का जो 2000 है वो जो तेरे तुम आप लोगों को एक्स्ट्रा मिला रहेगा वो हम लोगों ने प्री एक्विजिशन डिविडेंड उसको लेस किया है। वो कौन सा शेयर्स का है? 10,000 शेयर्स के ऊपर का है। अभी यहाँ पे 81,000। अभी सेल, अभी एंट्री क्या आएगा? दिसंबर में उसने कितना सेल किया? 1 December 2015 she sold 2 sales। कितना सेल किया? 1000। उसका नॉमिनल वैल्यू कितना होगा? 10,000। करेक्ट? यस। बट उसका कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? उसका कॉस्ट वैल्यू, वो अभी कितना है वो हमें देखना है। फिर हम लोग सेल प्रोसेस में जाएंगे। मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था तुम लोगों को कैसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग वो। इट विल बी कैलकुलेटेड, okay, down we will do cost of shares sold will be, अभी कितने में से कितना हम लोगों ने बेचा और हम लोग कितने में आ गए। अभी कॉस्ट कितना है? 81,400 और उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 1,08,000। अभी 1,08,000 में से 10,000, या अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 10,800 के डिवाइड किया इन दोनों को तो हमें पर शेयर का वैल्यू मिलता है into 1000। यू कैन कैलकुलेट इन दिस मैनर ऑल्सो। 81,400 तुम्हारा टोटल कॉस्ट है। कितने शेयर्स है तुम्हारे पास? 10,800। दिस इज द अदर मेथड। into how many shares you are selling? 1,000। so you will get the valuation as 7537। यहाँ पे उन्होंने
राउंड अप किया रहेगा, वो देख लो कैलसी में, मैं कैलसी अभी तुम लोगों को ऑनलाइन में नहीं दिखा सकता। देखो 81,400, 10,10,800 शेयर्स इंटू 1,000, 7357। अभी तुम लोगों ने वो बेचा कितने में वो देखना है हमें। यहाँ पे कैलकुलेशन करके रख दिया हम लोगों ने, 1/12/2050 बाय बैंक अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू कितना आएगा, 1,000 शेयर्स इंटू 10, दैट इज 10,000। और मार्केट वैल्यू कितना बेचा, 20 पर शेयर, मतलब 20 इंटू 1,000, दैट इज 20,000। समझ में आया ये देखो, ऑन 1 December 2015 1,000 of such shares were sold by Mrs. Meera at ₹20 per share. 1,000 into 10 nominal value, that is 10,000, or 1,000 into 20, that is 20,000. Now we have to calculate profit and loss on this, that is 1/12/2015 to P and L account. नॉमिनल वैल्यू में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। अभी कैसे कैलकुलेट करोगे, अपना वैल्यूएशन कितना हुआ था, 7537, तो प्रॉफिट ऑन सेल वैल्यूएशन कितना था, 7537, मतलब और बेचा कितने में, 20,000, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली 20,000 माइनस 7537, दैट इज इक्वल टू योर वैल्यूएशन, माइनस करो 12,463, 12,463, your profit is 12,463. Abhi we have to balance the figures. Remember, we have to bring balancing figures. अभी उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है क्या उधर, शेयर्स नहीं दिया है, एक्स्ट्रा वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो अभी बैलेंसिंग निकालेंगे हम। पहला totals, here it will come 50 plus 60, 70, 80, 90, 1,08,000, और यहाँ पे टोटल आएगा तुम्हारा 95,863, तो यहाँ पे भी आएगा 1,08,000, यहाँ पे आएगा 95,863, यहाँ पे डिविडेंड का 10,000 वो प्रॉफिट में जाने वाला है, 10,000, तो यहाँ पे भी 10,000, पहले डिविडेंड का हम लोग क्लोज कर लेंगे, it is on 31st March only closing, 31st March 2016 to P and L account, डिविडेंड का 10,000 का हम लोग बैलेंसिंग कर दिया है। अभी 31st March, see this is your totals, ये याद रखो, कंफ्यूज मत होना वैल्यूज के बीच में। अभी यहाँ पे भी 31st March 2016 by बैलेंस 10,000 चले गए, 1,08 में से, तो 98,000, और 95,863 में से 22,000 चले गए, तो 73,863 is your balancing figure. For your removing confusion, I will put distance between them, so you will be able to understand easily
तो बैलेंसिंग फिगर मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ, तो थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो तुम लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो अगेन कंफ्यूजन। 10,000, 95,863, यहाँ पे भी सेम बैलेंसिंग फिगर। इसमें याद रखना है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू निकालते समय नंबर ऑफ शेयर्स के साथ तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करना है। डोंट फॉरगेट दैट। स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज देयर कि वो वैल्यूज कैसे आए। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सम। आई होप आज किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा और सब डाउट्स क्लियर हुए रहे।